Okay, in previous lectures, we have gone through some of the numericals related with the preliminary estimate. So, as in previous lecture, it was the starting of the preliminary estimate. So, we have gone through the basic things related with the preliminary estimates. We have gone through the basic concepts of preliminary estimate. So, again, beyond this, we will solve some more problems related with the preliminary estimates. So already we have solved that is problem number 1.6 in previous lectures about the school building having a capacity of 300 students. So we have solved this problem in previous lectures. So it is requested to keep a notebook and pen along with the calculator. Okay, na? So that the numericals which we are solving, you should solve whether the answers which has been calculated here it is correct or not. So you can correlate that answers with the help of your calculator, and you should write down the important points, the important formulas which has been mentioned here. Okay. So in this way, we will in today's lectures we will solve the problem related with 1.7, that is problem number 1.7, example number 1.7. So prepare a preliminary estimate, that is approximate estimate and preliminary estimate is one and the same name given to the this. Prepare approximate or preliminary estimate of framed structures. Normally there are framed or that is load bearing structures. Here we are calculating for the framed structures having a carpet area of 400 square meter. What is the carpet area required? So here what is carpet area or plinth area or built up area, ये सारा जो था it has been studied in drawings also, it has been studied in BCM also, building construction management में भी आपने पढ़े होंगे या फिर BDD में भी पढ़े होंगे. What is carpet area, which things are included in carpet area, or what is built up area or plinth area. So these words are used. Okay? Prepare approximate estimate of a framed structures having a carpet area of 400 square meters. The following data is given. So here serial number 1 is area of veranda and corridor etc. to be 25% of built up area. That means that the area occupied by the veranda, area occupied by the veranda, corridor or etc. it is 25% of the built up area, of the built up area. ठीक है, जितना built up area होगा उसका 25% रहेगा. ठीक है. And for walls and column, अगर column अगर walls provide होते हैं because it is a frame structures, therefore there will be walls also and there will be columns also. ठीक है. तो वो कितना एरिया लेगा कॉलम का और वॉल्स में, इट विल टेक 9% ऑफ बिल्ट अप एरिया, इट विल टेक 9% ऑफ द बिल्ट अप एरिया. Number two is what is the rate given for the built up area? So built up area rate it has been given as 14,000. कितना है per square meters? It has been given as 14,000. 14,000 14,000. ठीक है. Next, number three serial number which has been given in the data is cost for special architectural treatment is 1%. Special architectural treatment ये word पिछले बार भी use हुआ था aesthetic views के लिए, exterior work के लिए, some मतलब designing purpose के लिए, aesthetic views के लिए, है ना, external जो रहता है उसमें 1% of building cost. ठीक है. Next is serial number 4. It has been given as cost of water supply and sanitary. It has been given as 7% of cost of building. मतलब उसका जो अमाउंट रहेगा, जो भी टोटल अमाउंट रहेगा, उसका 7% कौन लेगा? वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी. एक्चुअली ये क्या है, ये सारा आपने देखे होंगे, ये सब अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है, इसलिए अप्रोक्सीमेटली आप जज कर रहे हैं, आप फिक्स कर रहे हैं कि टोटल अमाउंट का 7% वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी लेगा. बट एक्चुअल में इतना लेगा क्या, ये वी हैव टू कैलकुलेट बाय डिटेल्ड एस्टिमेट, whether it will take actual as 7% or 8% or in some cases it can take 10% also. But ये यहाँ पे आप approximate निकाल रहे हैं तो assume कर रहे हैं कि 7% of the total cost will be taken by the water supply and sanitary which has been given in the question. ठीक है. Cost of electrification देखो कितना ले रहा है, it has been taken as 8% of the building cost. Contingencies, yes, अब ये जो है लास्ट के जो two parts है, these two it has been from the overall कॉस्ट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. तो दिस इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ओवरऑल कॉस्ट. ये दोनों का में से रहेगा, ओवरऑल कॉस्ट में से रहेगा. ठीक है. तो इट विल बी फ्रॉम द ओवरऑल कॉस्ट. तो कंटिजेंसीज दैट इज 4% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. अब ऊपर के जो थे सीरियल नंबर्स में, जैसा सीरियल नंबर 3 भी था, 4 भी था और 5 भी था, ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में से था. बट ये सीरियल नंबर 6 जो था इट हैज बीन फ्रॉम द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. Whereas work charge establishment it is 5% of overall cost of building.
तो दिस लास्ट में जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदर इट हैज बीन टेकन फ्रॉम ओवरऑल कॉस्ट और वेदर इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। लास्ट सीरियल नंबर जो है 8th सीरियल नंबर है एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर अदर सोर्सेज। यस, अदर सोर्सेज, अगर कुछ ऐसे मतलब एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शंस विच हैज नॉट बीन स्पेशली, मतलब कोई एक हेड में नहीं आता है, तो अदर सोर्सेज, अदर में कर दिया उसको, ठीक है ना। एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर अदर सोर्सेज इट इज 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे लास्ट के जो दो सीरियल नंबर है, सेकंड लास्ट और उससे थर्ड लास्ट, दैट हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम ओवरऑल कॉस्ट, बट एक बीच में आ गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि दिस सीरियल नंबर इट शुड बी एट द 6th नंबर, बट कंफ्यूज करने के लिए क्या किया उसने, लास्ट में लिया एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर अदर सोर्सेज बट इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द बिल्डिंग कॉस्ट, जस्ट फॉर कंफ्यूजन। ये एक्चुअल में यहाँ पे आना चाहिए था बट उसने लास्ट में दे दिया, बट इट इज टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग कॉस्ट से, ओवरऑल से नहीं रहेगा ये, ठीक है, ओवरऑल से नहीं है। तो व्हाट इज द थिंग इट हैज बीन गिवन, तो 400 इज द कारपेट एरिया। अब लेट पी इज द बिल्टअप एरिया, जिसको अपन ने पिछले प्रॉब्लम्स में क्या बोले थे, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग बोले थे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया इज द वर्ड गिवन, तो बिल्टअप एरिया एंड प्लिंथ एरिया वन इन द सेम, तो लेट पी इज इक्वल्स टू बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। तो पी इज इक्वल्स टू, पी में क्या क्या इंक्लूड होगा, बिल्टअप एरिया में क्या क्या इंक्लूड होगा, कारपेट एरिया इंक्लूड होगा, कॉरिडोर का और वरांडा का एरिया इंक्लूड होगा, और वॉल्स एंड कॉलम्स का एरिया इंक्लूड होगा, ठीक है। तो कारपेट एरिया इट हैज बीन गिवन एज इन द क्वेश्चन एज 400, वैसे ले लिए डायरेक्टली आपने, ठीक है। प्लस एरिया ऑफ कॉरिडोर कितना है, देखो सीरियल नंबर 1 में गिवन है, तो एरिया फॉर कॉरिडोर इज 25% ऑफ बिल्टअप एरिया, ठीक है। तो 25% ऑफ पी। वॉल्स के लिए कितना लिए, देखो 9% ऑफ वॉल्स एंड कॉलम्स के लिए 9% ऑफ बिल्टअप एरिया, तो अगेन 9% ऑफ पी। तो 25% ऑफ पी मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.09 हो जाएगा ये। तो दिस 2 विल बी एडेड, तो ये कितना होगा दोनों ऐड होने के बाद 0.34 पी, जस्ट सिंपल एडिशन इज देयर, ठीक है। 25 डिवाइडेड बाय 100, 9 डिवाइडेड बाय 100, जो वैल्यूज आ रही है ये दोनों वैल्यूज पी के कॉमन के साथ ले लो, तो क्या हो जाएगा 0.34 पी। अब दिस पी इज इक्वल्स टू है, तो ये 0.34 पी यहाँ पे जाएगा, तो क्या होगा 1 माइनस 0.34 पी, 1 माइनस 0.34 पी, ठीक है। सिंपल ये मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल इट इज टू बी सॉल्व। 400 डिवाइडेड बाय जो आंसर था वो करेंगे, तो पी वैल्यू कितना आएगा 606.06 स्क्वायर मीटर। ऐसा इसलिए मैं आई एम ऑलवेज बी टेलिंग you to have a calculator with you so that this values are correct or not, you can correlate with this, ठीक है। ये जो मैंने कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ बिकॉज आपका लेवल थोड़ा सा मतलब पूरा मैथमेटिकल इक्वेशंस एक एक स्टेप में सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, तो वी हैव टेकन दिस, ठीक है। 25% इसका ले लिया, 9% इसका ले लिया, दोनों का ऐड होने के बाद पॉइंट्स में क्या आ गया 0.34 हो गया, ये राइट साइड जाएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, अगेन डिवीजन होगा, तो ये सारा मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब्सट्रैक्शन ये सारा जो काम था वो डायरेक्टली वी हैव टेकन एज p इज इक्वल्स टू 606.06 square meters. Is that clear to everyone? Is that clear to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो ये बराबर आ रहा है क्या, ये चेक किए किसी ने, चेक भी Yes, करते sir. जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। यस, Alright, तो sir. इट इज करेक्ट। हाँ, p इज इक्वल्स टू 606.06 स्क्वायर मीटर्स था, तो ये इनडायरेक्टली वी हैव कैलकुलेटेड द बिल्टअप एरिया, ठीक है, प्लिंथ एरिया और बिल्टअप एरिया इनडायरेक्टली आपने कैलकुलेट किए थे, जिसमें कॉरिडोर गिवन था और 25% वॉल और कॉलम्स का 9% था, इनडायरेक्टली गिवन था। तो ऐसा सम केसेस में प्रॉब्लम्स में इनडायरेक्टली गिवन रहेगा, तो वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट द प्लिंथ एरिया। यहाँ पे प्लिंथ एरिया निकाल दिया आपने, पी लेट पी इज बी द प्लिंथ एरिया, तो प्लिंथ एरिया यहाँ पे लिख दिया मैंने 606.06 स्क्वायर मीटर्स पर स्क्वायर मीटर्स। अब उसका रेट कितना है, देखो सीरियल नंबर 2 में गिवन है, इट इज 14,000, तो जस्ट वी हैव टेकन एज 14,000। अब ये दोनों क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होंगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के लिए, तो व्हाट इज द सिंपल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट। तो अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन हियर आल्सो, इट इज नथिंग बट कैलकुलेशंस ऑफ प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्लिंथ एरिया रेट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, दिस इज द फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, प्लिंथ एरिया पी ए लिख दिया मैंने, प्लिंथ एरिया इनटू प्लिंथ एरिया रेट, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये कॉस्ट, ठीक है। तो 8484,840, ठीक है ना, दिस इज नथिंग बट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इन रुपीस। अब नेक्स्ट
अब ये कॉस्ट में क्या क्या चीजें इंक्लूड करना है, मतलब इसमें से एक्स्ट्रा क्या लगेगा, तो एक्स्ट्रा इसमें से लगेगा 1% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। जो बिल्डिंग कॉस्ट आया था उसका 1% कहा जाएगा, तो 1% ऑफ दिस इट विल बी टेकन एज द स्पेशल आर्किटेक्चरल। तो यहाँ पे सीरियल नंबर 1 मैंने लिख दिया, कॉस्ट ऑफ स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट इज टेकन एज 1% ऑफ दिस 8484840 का 1% कितना होगा, दैट इज 84,848.40 पैसा, ठीक है। तो 84,848 रुपीज हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। वाटर सप्लाई को देखो सीरियल नंबर में, वाटर सप्लाई कौन सा गिवन था, यस फोर्थ सीरियल नंबर में गिवन है, देखो यहाँ पे फोर्थ में 7% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, अगेन 7% ऑफ दिस 84,840 का 7% कितना होगा, इट इज 5,93,938.8 रुपीज 8 पैसा, ठीक है। ये हो गया 7%। इलेक्ट्रिफिकेशन को कितना देना है, देखो 8% देना है, किसमें से, इसमें से, ठीक है, इसका 8% लगेगा। तो 8% ऑफ दिस, अगेन द फर्स्ट रो जो होता है येलो में, तो 84,848.40 का अगेन 8%, इट कम्स टू बी 6,78,787.2। अब देखो यहाँ पे लास्ट में था रेड कलर्स के बाद में लास्ट में एक सीरियल नंबर था जो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का था, तो मैंने यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकाल रहे थे, अब मैंने उसको फोर्थ नंबर में दे दिया एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर अदर सोर्सेज। इट हैज बीन टेकन एज, एक्चुअली ये सीरियल नंबर में सबसे आखिरी में था, ठीक है, बट वो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में इंक्लूड हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, दैट इज 84,848.40 का 5% कितना होगा, 4,24,242 रुपीज। These all are calculated, राइट साइड में देखो यहाँ पे लिखा है, these all are calculated from cost of building, cost of building, cost of building and cost of building, ठीक है। तो these are four heads, it has been covered under the cost of building, ठीक है। ऐसा सब एडिशन करेंगे तो क्या होगा, जिसमें ये भी ऐड करना है, ये नहीं छोड़ना है, इसका 1% था, इसका 7%, इसका 8%, इसका 5%, मतलब इसको लीव नहीं करना है। अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को लीव कर देंगे मतलब क्या बचेगा, तो फिर सिर्फ ये काम करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर 1%, एक्स्ट्रा अमाउंट 7%, इलेक्ट्रिफिकेशन एक्स्ट्रा 8% लग रहा है, एक्स्ट्रा 5% लग रहा है, ये इसके अलावा में लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे देखो कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग को पकड़ के क्या रहेगा, 1+2+3+4, इट इज इंक्लूडिंग दिस, एक्सक्लूडिंग नहीं रहेगा, इंक्लूडिंग, ठीक है। अब लास्ट सीरियल नंबर में जो रेड मार्क किया था मैंने, 6th and 7th सीरियल नंबर क्वेश्चन में देखो सबसे ऊपर में 6th and 7th कंटिजेंसीज इज 4% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, तो इट इज 4% ऑफ ओवरऑल, तो 4% ऑफ दिस 102,666,564 का 4% क्या होगा, दैट इज 4,10,666,256, इसका 4% हो गया। अगेन 5% ऑफ ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगा, अगेन इसका 5% कितना होगा, देखो 5,13,332.82. This is nothing but the 5% of overall cost. यहाँ पे देखो, यहाँ पे राइट साइड में मैंने लिख दिया, this is nothing but from overall cost and this is also from overall cost of building. Then what is the grand total cost of the building? What is the grand total cost of building? So grand total cost of building will be overall cost plus contingencies plus work charge establishment, ठीक है। So overall cost of building plus A plus B is the serial numbers given to this contingencies and work charge establishment. तो ये green जो है rows मैंने ऐड किया, तो this is nothing but near about 11 crores और 11 हो जाएगा 1 lakhs 19 lakhs 655, ठीक है। This is nothing but 111,906,555 is the grand total cost of the building, including all these services which has to be provided, मतलब ये सारे सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग इज 111,906,555, ठीक है। In this way we have calculated this overall cost or we have calculated the grand total cost of the building, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट क्या था ये पिछले प्रॉब्लम से, कि ये सीरियल नंबर जो था लास्ट में गिवन था सोर्सेज के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, विच हैज बीन इंक्लूडेड इन दिस, ठीक है। यहाँ पे अपन इंक्लूड किए थे 5% में। तो हियर एवरीवन, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस। तो हियर वी विल हैव again one more problem related with this, some different minor things changes हो रहे हैं, प्रॉब्लम का प्रोसेस वही है और प्रॉब्लम्स का मतलब मेथड्स और कैलकुलेशंस वही है, माइनर देयर विल बी चेंजेस इन द सेंटेंस, ठीक है, थोड़ा सा चेंज होगा सेंटेंस में,
तो प्रॉपर्ली रीड करना है एंड टू सॉल्व एंड टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. Next is example number again 1.8 is next example is prepare prepare preliminary estimate of a building with total plinth area of all buildings of 1500 square meters. मतलब सारे बिल्डिंग का पूरा प्लिंथ एरिया क्या हो गया डायरेक्टली गिवन है यहाँ पे, दैट इज 1500 स्क्वायर मीटर्स. हियर देयर इज नो नीड टू फाइंड आउट द प्लिंथ एरिया, बिल्ट अप एरिया और प्लिंथ एरिया निकालना जरूरी नहीं है क्योंकि इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, तो इट हैज बीन डायरेक्टली गिवन. प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग विद टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग्स ऑफ 1500 square meter. The following data is given. Serial number 1 is plinth area rate is 17,000. Extra special architectural is given as 1.5% of building cost. Water supply और sanitary को 5% of building cost. Electrification को 14% of building cost. Contingencies को again ये दो heads काय में आ गए, again ये दो heads आ गए overall में. ठीक है, तो ये इसको highlight कर देते हैं क्योंकि ये overall में है. तो contingencies again 3% of overall आ गया. सुपरविजन अगेन चार्जेस 8% ऑफ ओवरऑल आ गया. और वही चीज फिर से रिपीट हो गई कि सीरियल नंबर जो था 7th सीरियल नंबर इट इज फ्रॉम द बिल्डिंग कॉस्ट. ठीक है, ये भी एक थोड़ा सा ऊपर होना था मगर लास्ट में देखिए इसने बिल्डिंग कॉस्ट से कैलकुलेट करना, ओवरऑल कॉस्ट से नहीं बल्कि बिल्डिंग कॉस्ट से कैलकुलेट करना है. ठीक है, तो सिंपल है, पिछले से और ज्यादा सिंपल है. तो फास्टली वी विल सी द सोल्यूशन फॉर दिस. Plinth area is 1500. It has been given in the questions. Plinth area rate is also given. 17,000 is the plinth area rate. Just the simple formula is there. Just the multiplication is there. That is plinth area into plinth area rate. Okay. Plinth area into plinth area rate. Simple multiplication is there. These two rows. So 1500 multiplied by 1700. It comes to be 2 crore. That is 255. And 1 2 3 4 5 5 times 0. ठीक है. Cost of special architectural treatment it has been given as 1.5% of building cost. तो 1.5% इसका कितना हो जाएगा, that is 3,82,500. इसका 1.5%. Electrifications को 5% था, उसका कितना हो गया, that is 12,75,000. ठीक है. इलेक्ट्रिफिकेशन को हो जाएगा 3 करोड़ 57 3 करोड़ 5 lakhs 70,000 इलेक्ट्रिफिकेशन को लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिफिकेशन को देयर में भी लिफ्ट हो सकता है और भी ट्रांसफार्मर या फिर और भी जो रिलेटेड जो रहेगा. इलेक्ट्रिफिकेशन पार्ट को ज़्यादा दिया इसने, 14% दिया. ये सारा जो परसेंटेज है ये डिसाइड अप्रोक्सीमेटली हो रहा है, मतलब एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू, इंजीनियर्स के पास जितना एक्सपीरियंस है, जितने उसने काम किया था, जितना उसको नॉलेज था फील्ड से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, तो उसने डिसाइड किया कि भाई टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट इलेक्ट्रिफिकेशन को आएगा, तो 14%. वाटर सप्लाई को कितना लगेगा कि मतलब सादे अगर वाटर सप्लाई है, पीवीसी लाइंस में है, जीआई के लाइंस नहीं है, पीवीसी में है, सादा पीवीसी. पहले जीआई के लाइंस होते थे, आप देखे होंगे जीआई के पाइप फिटिंग्स होते थे. अभी नॉर्मली वी आर यूजिंग पीवीसी. तो पीवीसी में भी अलग अलग कंपनीज के आते हैं. तो हियर द कॉस्ट इज बीन गिवन एज 5%. आर्किटेक्चरल को ज़्यादा नहीं लगता है, 1.5%. एक्स्ट्रा इज गिवन एज 6%. अनफोर्सिन एक्सपेंसेस के लिए अगर एक्स्ट्रा कुछ ऐसा लगता है तो 6% ले लिया उसने. So 6% of this is it comes to be 1 crore 53,000. ठीक है, near about. ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ दिस प्लस सीरियल नंबर 1 2 3 4. ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के साथ में 1 2 3 4 सीरियल नंबर्स ऐड करेंगे. इट कम्स टू बी 322,57,522. 322,57,522 is the overall cost of building. This is nothing but the overall cost. अब कंटिजेंसी 3% था तो 3% इसका कितना हो जाएगा, it comes to be 9,67,725. सुपरविजन को देंगे, बीइंग अ कॉन्ट्रैक्टर्स और बीइंग एन इंजीनियर्स अपना भी कुछ प्रॉफिट होगा, सुपरविजन चार्जेस लगेंगे तो 8% रहेगा उसका. तो 8% कितना हो जाएगा, 25,80,600. तो इट कम्स टू बी 25,80, दैट इज 2 करोड़ 58,000 58,06,000. नेक्स्ट इज ग्रैंड टोटल कॉस्ट कितना होगा, ओवरऑल कॉस्ट प्लस ए प्लस बी. ओवरऑल कॉस्ट में ए प्लस बी ऐड कर देंगे, ओवरऑल कॉस्ट एंड ए प्लस बी ऐड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है, तो 35805825. ठीक है, 35805825. तो इन दिस वे सेम ही था, इससे पिछला जो प्रॉब्लम था उससे ज़्यादा और सिंपल था बिकॉज इन दिस प्रॉब्लम प्लिंथ एरिया वाज डायरेक्टली गिवन. वी हैव कैलकुलेटेड दिस ग्रैंड टोटल कॉस्ट एज 35805825. ठीक है. Next is example number 1.9 is again we have to prepare a preliminary estimate.
So here again we have to find out the preliminary estimate. Prepare preliminary estimate of 4-storied office building having a carpet areas of 2000 square meters. तो अगर 4 story building है जिसका carpet area है 2000 square meters, following data is given. ठीक है, area of veranda अब यहाँ पे देखो indirectly given है. Area of veranda and corridor is 30% of built up areas. Walls के लिए columns के लिए 10% of built up area है. Plinth area rate है 15,000. Extra due to deep foundation at site. ठीक है, तो डीप फाउंडेशन अगर साइट्स पे हो रहा है तो एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी रिक्वायर्ड. तो how much extra amount will be required for deep foundations excavations in order to excavate the soil at a required depth के लिए excavate करना है तो it is 1% of building cost का 1% deep foundations के लिए जाएगा. ठीक है. Serial number 3 is cost of special as usual 0.5% है. वाटर सप्लाई के लिए 6% है. इलेक्ट्रिकल के 12.5 बिल्डिंग कॉस्ट से है. और कंटिजेंसीज ओवरऑल में आ जाएगा ये दोनों, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं सो दैट इट विल नॉट बी कंफ्यूज. तो ये ओवरऑल में आ जाएगा 2.5%. सुपरविजन 8% आ जाएगा ओवरऑल में. एक्स्ट्रा वैसी बिल्डिंग कॉस्ट में रहेगा. ठीक है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा वर्ड यहाँ पे गिवन था डीप फाउंडेशंस के लिए. ठीक है, तो एक्स्ट्रा कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर डीप फाउंडेशंस. Again, the same procedure is there. Suppose we are assuming P as the built-up area, plinth area of the building. So P includes carpet area, area of corridor and verandas, and area of walls and columns. ये सारा include होके क्या बनेगा वो built-up area बनेगा. So P is equals to. It has been given as even though it is 4 story. यहाँ पे सिर्फ confuse करने के लिए 4 story है. But 4 story का ऐसा कुछ separately mention नहीं है कि each story कितना है या फिर इस स्टोरी में कितना एरिया इंक्लूड हो रहा है, प्लिंथ एरिया, कारपेट एरिया क्या रहेगा, कुछ भी नहीं. सिर्फ एक वर्ड इंक्लूड किया इसने. ठीक है ना, 4 स्टोरीड बोल के उसने वर्ड इंक्लूड किया. तो ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हर स्टोरी में कितना रहेगा, उसको इंडिविजुअल ऐड करो, इंडिविजुअल डिवाइड करो, ऐसा इंडिविजुअल नहीं है. ओवरऑल बिल्डिंग का टोटल 4 स्टोरीज के लिए 2000 गिवन है. तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, कारपेट एरिया में 2000 गिवन है, और वरांडा के लिए 30% ऑफ पी, और वॉल्स के लिए 10% ऑफ पी विच हैज बीन गिवन इन द सीरियल नंबर 1. 30% ऑफ वरांडा के लिए, 10% वॉल्स के लिए. यहाँ पे ले लिया आपने 10%. तो जस्ट डिवीजन इज देयर, 30 डिवाइड बाय 100, 10 डिवाइड बाय 100, ये दोनों को ऐड कर दो और 1 माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे. ये सारा जो होगा कैलकुलेशन सिंपल वे में. तो पी वैल्यू इट कम्स टू बी 3333.33 स्क्वायर मीटर्स. 3333.33 स्क्वायर मीटर्स. ये आ रहा है क्या बराबर, करेक्ट आ रहा है क्या ये? Yes. Whether this answer is correct? Yes. कैलकुलेट में with the help of calculators कैलकुलेट किए कि ये वैल्यू बराबर आ रही है 3333.33. Whether this value is correct? Yes. Abdul Munib. Corrected. Yes, sir. Correct. सब प्रेजेंट है क्या, सिर्फ ऐसी छोड़ के चले गए? प्रेजेंट, एवरीवन इज प्रेजेंट. Yes, sir. शुभम. Yes, sir. हाँ, ठीक है. तो ये वैल्यू जो है इट कम्स टू बी 3333.33. कैसा आया? तो इट हैज बीन कैलकुलेटेड फ्रॉम द वैल्यूज. ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू 3333.33, दैट इज स्क्वायर मीटर्स. नेक्स्ट रेट इज गिवन एज 15,000. तो मैंने यहाँ पे रेट लिख लिया. अभी ये कैलकुलेट किए थे वो रहेगा फर्स्ट रो में. तो प्लिंथ एरिया इज गिवन एज 3333.33 पर स्क्वायर मीटर्स, और प्लिंथ एरिया रेट given the question में, that is it has been given as 15,000. just the multiplication is there, plinth area into plinth area rate. so we can यहाँ पे write down as plinth area into plinth area rate. ठीक है, so just is the multiplication for this. It comes to be 5 times 950. ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट मतलब कॉस्ट हो गया, ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो गया. एक्स्ट्रा डीप के लिए देखो, एक्स्ट्रा डीप था जो सीरियल नंबर 1 था, यहाँ पे सीरियल नंबर 2 में गिवन था, इंक्लूडिंग बोथ था. ठीक है, तो 1% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट था. तो 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, इसका 1% हो गया, दैट इज 4 1 2 3 4 5 5 टाइम्स 9.5. ठीक है, स्पेशल आर्किटेक्चरल के लिए कितना आ जाएगा, 0.5% ऑफ दिस. तो 4 times 9.75. अगेन इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए आ जाएगा 12.5%. तो इट कम्स टू बी 624 999 3.75.
5% किसके लिए गिवन है? 5% है क्या एक्स्ट्रा? यस 5% है जो लास्ट में गिवन है एक्स्ट्रा फॉर अदर सोर्सेज के लिए 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है. तो इट कम्स टू बी 5% ऑफ दिस. 5% ऑफ दिस इट कम्स टू बी 5% आ जाएगा इसका 2 4 अगेन 4 टाइम्स 9 7.5. ओवरऑल कॉस्ट में क्या रहेगा? ये कॉस्ट रहेगा दैट इज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस 1 to 5 सीरियल नंबर्स. ठीक है 1 to 5 सीरियल नंबर्स. तो 6 to 4 99937.5 विल बी द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग. अब रेड से जो मैंने मार्क किया था दैट इज 2.5% ऑफ ओवरऑल एंड 8% ऑफ दिस. तो एक्स्ट्रा रहेगा ये 2.5 इससे एक्स्ट्रा रहेगा दैट इज 2.5% ऑफ दिस अमाउंट. तो 1562498.44 इज द 2.5% ऑफ दिस कॉस्ट. सुपरविजन के लिए 8% रहेगा इसका. तो 4 अगेन 5 टाइम्स 95. ग्रैंड टोटल कॉस्ट क्या रहेगा? ओवरऑल कॉस्ट प्लस ए प्लस बी. सिंपल ये सारे एडिशन ही चाहिए और कोई चेंज नहीं है इसमें. सिंपल एडिशन ही चाहिए. सम डिफरेंट डाटा विल बी देयर. थोड़ा सा कैलकुलेशंस में डिफरेंट रहेगा. बाकी प्रोसीजर एंड स्टेप्स आर सेम. ठीक है फॉर्मूलाज आर सेम स्टेप्स आर सेम. तो द कॉस्ट कम्स टू बी 690,624,30.9. 690,624,30.9. दैट इज द टोटल. दैट इज ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग. ठीक है तो ये ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है 4 स्टोरीज के लिए. अगर सपोज आपको 1 स्टोरी के लिए निकालना है तो डिवाइड बाय 4 कर दो. क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था कि आपको सेपरेटली मालूम करना है. तो वी हैव टेकन एज द कंबाइंड कैलकुलेशंस फॉर दिस दैट इज फॉर 4 स्टोरी. अगर सपोज 1 स्टोरी के लिए निकालना है आपके मतलब कन्वीनियंस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तो वी कैन डिवाइड दिस फॉर 1. बट ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर स्टोरी का रेट अलग होता है. ठीक है ना. एवरी स्टोरी इट इज हैविंग डिफरेंट रेट. आप देखेंगे सेलिंग में भी जब सेल होते हैं फ्लैट्स तो हर स्टोरी पे फ्लैट का जो सेलिंग होता है वो अलग अलग रेट्स का रहता है. तो वैसे यहाँ पे डिवाइड बाय 4 करके आप नहीं निकाल सकते और उसमें क्वेश्चन में भी वैसा गिवन नहीं था. ठीक है तो ये इसका बाइफर्केशंस अलग अलग होगा. वो नेक्स्ट प्रॉब्लम में वी विल सी व्हाट विल बी दिस डिफरेंट फ्लोर्स पे कैसा बाइफर्केट होगा, कैसा उसका इंक्लूड होगा, कैसा मतलब गिवन रहेगा उसका रेट. एक प्रॉब्लम अपने पास सॉल्व है and same type of problem to be solved in practical notebooks also. ठीक है ना. तो next problem is important, very very important. So number 2 problem is very very important. ठीक है so there is example number 2.0 is important. ठीक है तो prepare preliminary estimate of a framed 4-storied office building. again word आ गया मगर अब ये word वैसा normal वाला word नहीं रहेगा. थोड़ा सा अलग वर्ड है. ठीक है ना. पिछले इसमें ये वर्ड यूज किए थे बट नॉर्मल वे में था. बट यहाँ पे क्या रहेगा देखो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट ऑफ फ्रेम्ड 4-storied ऑफिस बिल्डिंग हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर फॉर ईच फ्लोर. अब आ गया देखो वर्ड आ गया देखो. 4 फ्लोर है मगर हर एक फ्लोर का कितना एरिया है? 300 है. 300 स्क्वायर मीटर फॉर ईच फ्लोर. द फॉलोइंग डाटा इज गिवन. ईच वर्ड आ गया है. पिछले प्रॉब्लम में ईच वर्ड नहीं था इसलिए मैंने पिछला प्रॉब्लम भी लिया अभी का भी लिया सो दैट देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग द थिंग्स. ठीक है सीन नंबर 1 क्या है देखो. एरिया ऑफ वरांडा कॉरिडोर एक्सेट्रा टू बी 25% ऑफ बिल्टअप एरिया एंड फॉर वॉल्स अगेन 8.5% ऑफ बिल्टअप एरिया. ये तो एज यूजुअल था. इसमें परसेंटेज चेंज होते रहते. कभी 35 होता कभी 10 होता कभी 12 होता है. तो यहाँ पे 25 और 8.5 है. Serial number 2 is built up area rate ground floor excluding foundations. अब यहाँ पे देखो separation of rates हो गया. रेट सेपरेट हो रहे हैं यहाँ पे. built up area rate for ground floor excluding मतलब फाउंडेशन को आप इंक्लूड नहीं कर सकते. excluding foundation is ₹15,000 square meters. excluding word is important. ठीक है this word is important excluding. नेक्स्ट बिल्टअप एरिया सीरियल नंबर 3 देखो. बिल्टअप एरिया रेट फॉर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर. अगर फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर आपको बनाना है उसका एरिया उसका कॉस्ट कितना देखो 16,500. आ गया वेरिएशन. पहले 15,000 था अब आ गया फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना पैसा लग रहा है 16,500. क्यों लग रहा है? व्हाट इज डिफरेंट? बिकॉज एक्स्ट्रा लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर लिफ्टिंग द मटेरियल्स. ठीक है एक फ्लोर से जैसे जैसा ऊपर होते जाएगा वैसे वैसा कॉस्ट इंक्रीज होते जाएगा. क्यों? क्योंकि एक्स्ट्रा लेबर्स विल बी रिक्वायर्ड. सम एक्स्ट्रा एडवांस ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड. लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड. आप अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं लिफ्ट से मतलब लिफ्टिंग जैसा अपने पास रहता है मिक्सर मशीन को लिफ्ट करने के लिए जो लिफ्टिंग रहता है अगर उससे लिफ्ट कर रहे हैं तब भी आपको डीजल लगेगा पेट्रोल लगेगा या फिर थ्रू मैन पावर से लिफ्टिंग हो रहा है तो लेबर्स लगेगा.
इसलिए इसका रेट डिफर हो गया, 1500 ज़्यादा हो गया, ठीक है ना। तो 15,000 था, 1,600 16,500 हो गया। फोर्थ सीरियल नंबर देखो, बिल्ट अप एरिया रेट फॉर थर्ड फ्लोर, 1 2 का तो सेम हो गया, बट अगेन थर्ड फ्लोर और इंक्रीज हो गया। देखो 18,000 स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर मीटर, 18,000 हो गया। देखो अगेन इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब एक्स्ट्रा फॉर फाउंडेशन, अब जो यहाँ पे एक्सक्लूड किया था सीरियल नंबर 2 में, अब यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है। देखो एक्स्ट्रा फॉर फाउंडेशंस 20% ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कॉस्ट, ऊपर के कॉस्ट का 20% पैसा लगेगा फाउंडेशन के लिए। समझ में आया। तो एक्स्ट्रा फॉर फाउंडेशन 20% ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कॉस्ट। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होगा वो आएगा। प्लिंथ एरिया रेट देखो, प्लिंथ एरिया रेट नॉर्मल में फर्स्ट फ्लोर का जो था वही यहाँ पे ले लिया इसने, बट ये एक ही फ्लोर का है, टोटल नहीं है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए फिर से ले लिया, बट इसका ये लाइन का कोई यूज नहीं है। वाई इट इज नॉट यूज, बिकॉज सेपरेटली इट हैज बीन गिवन फॉर ईच फ्लोर। तो ये कंफ्यूज करने के लिए कि ये नहीं लेना है आपको, बट यू हैव टू टेकन सेपरेटली फॉर सीरियल नंबर 2 3 एंड 4। एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट 1% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट है। वाटर सप्लाई सैनिटरी 7% एज यूजुअल है, और इलेक्ट्रिफिकेशन 8% है, बिल्डिंग कॉस्ट है। कंटिजेंसीज 4% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है एज यूजुअल है। ये वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट क्या रहेगा, सिर्फ एक ही हेड गिवन है यहाँ पे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा इट इज़ नॉट गिवन फॉर सुपरविजन चार्जेस, यहाँ पे सुपरविजन चार्जेस नहीं है, ठीक है। ये दोनों जो चीज़ें थी वो ओवरऑल से, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग तो हाईलाइट कर दिया। Contingencies and work charge establishment is 10%. Extra cost for other sources, again ये serial number confuse करने के लिए लास्ट में दे दिया 5% of building cost. So let P is the built up area as usual रहेगा। P built up area रहेगा, उसमें क्या इंक्लूड होगा, 25% भी इंक्लूड होगा, 8.5 भी रहेगा और given 300 भी रहेगा। तो P is equals to that is carpet area, that is area for corridor and verandas and area for walls and columns. So 300 is 25% of P, 8.5% of P, तो 0.25 P, 0.085 P, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई वे में किया है इसको। ये दोनों ऐड कर दो 0.335 P हो जाएगा, राइट साइड लेके चले जाऊँ 1 माइनस 0.335 P हो रहा है, तो डिवीजन कर दो 300 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आएगा, तो P इट कम्स टू बी 451.13 स्क्वायर मीटर्स। तो P वैल्यू इट कम्स टू बी 451.13 स्क्वायर मीटर्स। ये आ गया वैल्यू सबका 451.13 स्क्वायर मीटर्स। अगेन ये क्या हो गया, ग्राउंड फ्लोर एरिया, ये हो गया ग्राउंड फ्लोर एरिया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 451.13 पर स्क्वायर मीटर्स। अब उसका रेट गिवन था, बिल्टअप एरिया सीरियल नंबर 2 में देखो, बिल्टअप एरिया रेट ग्राउंड फ्लोर एक्सक्लूडिंग फाउंडेशंस 15,000 था। तो अब 15,000 और उसका प्लिंथ एरिया निकाल लिया अभी अपन ने सारे कैलकुलेशंस करने के बाद, तो कितना आ गया 451.13। तो 15,000 multiplied by 451.13, the simple calculations is, it comes to be 6 crore 76 lakhs 6,950, ठीक है। ये आ गया इसके बाद। ये सिर्फ किसके लिए आया, ग्राउंड फ्लोर के लिए आ गया, ओनली फॉर ग्राउंड फ्लोर, बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड विथ ग्राउंड फ्लोर ओनली, ठीक है। सिर्फ ग्राउंड फ्लोर से मल्टीप्लाई किए तो ग्राउंड फ्लोर का रेट से मल्टीप्लाई किए तो ग्राउंड फ्लोर का अमाउंट आ गया, तो यहाँ पे हाईलाइट होगा। फर्स्ट फ्लोर का रेट कितना है देखो, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर का कितना है 16,500 फॉर बोथ। तो देखो फर्स्ट फ्लोर एरिया, अगेन मैं फिर से लिखूंगा वो, क्योंकि वहां पे सबसे पहले ऊपर में लिखा था फॉर ईच एरिया, तो ये ईच के लिए कैलकुलेट हो रहा, मतलब ऐसे कितने हैं G+3, टोटल 4 है मगर G+3 ग्राउंड फ्लोर प्लस रिमेनिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर G+3। तो जी का आ गया यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर का आ गया। फर्स्ट का आ गया देखो, अगेन मैंने 451.13 जो लिया था पी की वैल्यू वो ले लिया, बट इसका अब रेट रहेगा 16,500। तो 16,500 का रेट मल्टीप्लाई कर देंगे ये दोनों से, तो क्या आ जाएगा, द कॉस्ट फॉर द फर्स्ट फ्लोर, ये कॉस्ट फॉर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कॉस्ट फॉर 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 ग्राउंड फ्लोर, दिस इज नथिंग बट ग्राउंड फ्लोर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आएगा दिस इज नथिंग बट अगेन सेम वे, मगर यहाँ पे आ जाएगा कॉस्ट फॉर फर्स्ट फ्लोर, कॉस्ट फॉर इंस्टेड ऑफ ग्राउंड फ्लोर इट इज फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये फर्स्ट फ्लोर का लिया गया।
वैसे ही अब देखो कॉस्ट फॉर सेकेंड फ्लोर बट रेट इज सेम, बट मैंने डिफरेंट हेड में लिया इसको क्योंकि प्लस 2 टाइम्स ना करते हुए। सेकेंड फ्लोर का भी देखो यहाँ पे ऊपर में था फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर, यहाँ पे ऊपर में लेता हूँ देखो सीरियल नंबर 3 में फर्स्ट एंड सेकेंड फ्लोर इज 16,500। तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर भी ले लिया अपन ने। अब यहाँ पे मैं सेकेंड फ्लोर भी ले रहा हूँ बट डिफरेंट लाइन में ले रहा हूँ सो दैट इट शुड नॉट बी कंफ्यूज। सेकेंड फ्लोर, ठीक है। तो अगेन 451.13 जो आया था पी लेंथ एरिया आ गया था एक फ्लोर का। अब सेकेंड फ्लोर का रेट सेम था फर्स्ट फ्लोर का, वंस अगेन मैं लिख दिया, हालांकि मल्टीप्लाइड बाय 2 करके भी कर सकते थे अपन, बट कंफ्यूज होगा। इंडिविजुअल फ्लोर्स के लिए निकालना आसान है तो इसलिए मैंने फिर से ले लिया इसको 451.13 अगेन 16,500। द वैल्यू इट कम्स टू बी बोथ एज फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का दोनों का रेट सेम आ गया। बट अब देखो थर्ड फ्लोर का रेट था 18,000, जैसा याद होगा आपको यहाँ पे ऊपर में था थर्ड फ्लोर का रेट था 18,000। तो थर्ड फ्लोर का अगेन प्लिंथ एरिया क्या हो गया 451.13, उसका रेट आ गया 18,000। अगेन मल्टीप्लाई किया इसको, इसको मैं लिख देता हूँ फॉर कॉस्ट फॉर थर्ड फ्लोर, दिस इज फॉर थर्ड फ्लोर, कॉस्ट फॉर थर्ड फ्लोर। यस, तो अगेन आ गया ये कॉस्ट फॉर थर्ड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर का कॉस्ट ये येलो में जो हाईलाइट किया था, फर्स्ट फ्लोर का कॉस्ट, सेकंड फ्लोर का कॉस्ट, थर्ड फ्लोर का कॉस्ट, ऐसा तीनों मिला के सुपर स्ट्रक्चर्स का कॉस्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर से मिला के सुपर स्ट्रक्चर का कॉस्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये तीनों मिला के चारों मिला के 1 2 एंड 3 एंड 4। तो ऑल दिस मतलब इट विल इंक्लूड जी, विल इंक्लूड जी प्लस 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 सेकेंड प्लस थर्ड, ठीक है। क्या इंक्लूड किया आपने, ग्राउंड फ्लोर इंक्लूड किए प्लस फर्स्ट फ्लोर इंक्लूड किए प्लस सेकेंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। तो दिस विल इंक्लूड हियर, ये क्या हो गया, तो सब इंक्लूड करने के बाद कॉस्ट बन गया, क्या बन गया 229,774580। यहाँ तक सब कुछ समझ में आया? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है ना। Yes, यही sir. मतलब यही समझाने के लिए सारे काम किए अपन ने, जो बेसिक से आया है अभी तक ये लास्ट प्रॉब्लम के लिए आया ही है, मतलब ये सारे जो कैलकुलेशन अब तक किए अपन ने ये प्रॉब्लम को समझाने के लिए किया, ठीक है ना। अपन मतलब स्लाइटली वी आर इंक्रीजिंग विद सम डिफिकल्टीज, है ना, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करके अपन अपने जो एक्चुअल प्रॉब्लम पे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल प्रॉब्लम ये था अपने पास G+4 वाला जो G+3 वाला जो प्रॉब्लम था फोर स्टोरीज का, ठीक है ना। सुपर स्ट्रक्चर्स हो गया, क्लोज द माइक, ओके। तो कॉस्ट फॉर सुपर स्ट्रक्चर्स आ गया, कॉस्ट फॉर सुपर स्ट्रक्चर्स इज 29774580। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट इज अगेन मैं नीचे जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा ड्यू टू फाउंडेशन एट साइट। अब ये वर्ड इंक्लूड था, आपको याद होगा, जैसे मैंने प्रॉब्लम रीड किया था, फिर से रीड कर देता हूँ। ऊपर में देख लो सीरियल नंबर 5 में, एक्स्ट्रा फॉर फाउंडेशन इज 20% ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कॉस्ट, मतलब ऊपर के काम का जितना टोटल अमाउंट आएगा उसका 20% विल बी टेकन बाय फॉर फाउंडेशन, बिकॉज फाउंडेशन जितना कॉस्ट मतलब फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, जितने मटेरियल्स और सारा जो चीज़ें स्ट्रांग रहेगी, तो वो डिपेंड करेगा किस पे, ऊपर में जितना पैसा लग रहा है उसका 20% अमाउंट विल बी टेकन बाय द फाउंडेशन, 20% विल बी टेकन बाय द फाउंडेशन, ठीक है। यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर्स को अपन ने लिख दिया ग्रीन में। तो अब एक्स्ट्रा ड्यू टू फाउंडेशन एट साइट इज नथिंग बट 20% of of cost of superstructures, that means 29774580 का 20% will be taken by foundations। ये सारा एक्सपीरियंस से हो रहा है, ठीक है ना। ये मतलब प्रॉपर इंजीनियर्स ने और है ना साइट इंजीनियर्स ने और कॉन्ट्रैक्टर्स ने ये डिसाइड करे हैं कि 20% वो नियर अबाउट 20% लगता है फाउंडेशंस को, ऊपर के जितना आप फ्लोर ऐड करते जाएंगे, ठीक है। 5954 that is 54916 will be the 20% of this amount. So 5 crores, near about 5 crores, no, sorry 59 crores 554,916, okay। So this is nothing but the 20% of this amount, मतलब 20% टोटल कॉस्ट लग गया फाउंडेशंस के लिए।
अब यहाँ से हो रहा है नॉर्मल प्रॉब्लम अपना स्टार्ट। जो अपन ने प्रीवियस जो काम किए थे वो सारे काम अपन ने पहले न करते हुए ये सारा काम पहले किया अपन ने। अब ये नॉर्मल अमाउंट आ गया जो अपन को मिल गया है। अब यहाँ से एज यूजुअल जो प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ स्पेशल आर्किटेक्चरल हो जाएगा 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अभी निकाल दिया अपन ने ब्लू कलर में, यहाँ पे जो निकाला मैंने कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 1%, तो सिंपल ले लो यहाँ पे 1% ऑफ दिस। सैनिटरी को 7% आ गया ये रो का कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का, अगेन 7% ले लिया आपने। इलेक्ट्रिफिकेशन का 8% अगेन इसका ले लिए, इसका 8% हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक भी करता हूँ तो ऊपर फॉर्मूला दिखता है बट मैंने हाइड कर दिया ऊपर में। ठीक है, तो 8% ऑफ दिस करेंगे आप 35729496 का 8% अगर करेंगे तो ये अमाउंट आ गया। अगेन 5% अगर करेंगे तो अगेन द अमाउंट कम्स टू बी 1786474.8। अब क्या रहेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग में क्या रहेगा, दिस ब्लू कलर प्लस ऑल दिस 4 येलो कलर्स में जो किए थे आपने 1 to 4 सीरियल नंबर्स में। तो कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस 1 2 3 4 आ जाएगा, दैट इज 43232690.2। दिस इज नथिंग बट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। दिस इज नथिंग बट द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। समझ में आया सबको? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग समझ में आ गया? हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द ओवरऑल कॉस्ट? Yes, sir. Yes, is that clear to everyone? Yes, so we have calculated the overall cost of building Yes, sir. indirectly। ठीक है ना, इनडायरेक्टली। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में थोड़ा सा लेंदी Yes. था बट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आ गया आपके पास 43232690.2। ठीक है, अब कंटेंजेंसीज अभी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुआ अपना। ठीक है ना, ये थोड़ा सा लेंदी था। तो कंटेंजेंसीज था 4% ऑफ ओवरऑल। तो 4% वो क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, अगेन मैं ऊपर में ही नहीं जाऊंगा, आप याद होगा तो 4% था अपने पास कंटेंजेंसीज के लिए। तो ओवरऑल कॉस्ट का 4% ले लेंगे आप तो आ जाएगा 1729307.61। 10% अगर लेंगे अगेन दिस 4323 का 10% लेंगे तो आएगा 4323, एक जीरो कम हो जाएगा यहाँ पे 690, तो एक जीरो कम हो जाएगा 10% के लिए। तो क्या हो जाएगा 43232690.02। अब क्या हो जाएगा ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग क्या हो जाएगा फॉर दिस बिल्डिंग? ग्रैंड टोटल कॉस्ट ऑफ 4 स्टोरीड बिल्डिंग, टोटल 4 स्टोरीड बिल्डिंग इंक्लूडिंग ग्राउंड प्लस फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्लोर। तो अब ये 4 स्टोरी का ग्रैंड टोटल कॉस्ट कितना रहेगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग प्लस ए प्लस बी? तो इट कम्स टू बी 49285266। दैट मीन्स 49 crores 28,05,266 rupees. This is nothing but the grand total cost of building, grand total cost of 4-storied building. ठीक है, इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर नहीं, इंक्लूडिंग ग्राउंड फ्लोर। तो ये थोड़ा सा एक चेंज था बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था जिसमें बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। और यही प्रॉब्लम से आपको मतलब प्रैक्टिकल में रिकॉर्ड बुक में यू हैव टू राइट डाउन द प्रॉब्लम। मैं नेक्स्ट इसमें स्लाइड में बताऊंगा नेक्स्ट इसमें कि विच प्रॉब्लम इट इज टू बी रिटन इन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड। ठीक है, बट दिस प्रॉब्लम अपना ये सारा काम जो करना था पिछले 2 लेक्चर से अपन कर रहे थे वो सारा आज के लेक्चर पे एंड हो रहा है। मतलब आज के लेक्चर्स को सॉल्व करने के लिए सारा कंसेप्ट वी हैव यूज्ड। ठीक है ना, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट आज का प्रॉब्लम था ये लास्ट। दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2। सर एक डाउट है सर। हाँ बोलो बोलो। सर जो कारपेट एरिया दिया है ईच फ्लोर का, हाँ तो जिसमें वरांडा और कॉरिडोर का वॉल्स का और कॉलम का ये दिया परसेंटेज, हाँ वहाँ सर सभी फ्लोर के लिए सेम तो नहीं बोला है सर? नहीं, तो ईच फ्लोर आपने ऊपर में देखो यहाँ पे कैसा है, देखो हर फ्लोर में वरांडा आएगा लॉजिकल हाँ। वे। लॉजिक क्या बोलता है आप देखे होंगे बिल्डिंग में हर फ्लोर में क्या रहता है कि अगर ऐसा नहीं होता है कि मेरे पास ग्राउंड फ्लोर में वरांडा आ गया और मैंने वरांडा फर्स्ट और सेकंड में स्किप कर दिया, थर्ड में डाल दिया, ऐसे नहीं होगा। जो चीज़ प्लान में होती है वही नीचे से ऊपर तक जाती है। तो मतलब क्या है एक लॉजिकल वे है सोचने के लिए कि मेरे पास वरांडा था और जो कॉरिडोर था और या फिर जो वर्किंग स्पेस है मेरे पास आने जाने के लिए बोलो या फिर जो खुली स्पेस थी मेरे घर के सामने में बोलो वरांडा के लिए, वो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे ग्राउंड फ्लोर में जितनी थी वही सारे फ्लोर में इंक्लूड हो गई। समझ में आ रहा है ना, ऊपर Yes, तक sir. वही सेम है, वही सेम है। तो इसलिए यहाँ पे ईच फ्लोर के लिए वर्ड यूज हुआ था। ठीक है ना, मतलब 300 इज फॉर ईच फ्लोर। और इसमें ऐसा तो आप जो बोल रहे हैं ना सेंटेंस वो भी इंक्लूड होना चाहिए फॉर एरिया फॉर वरांडा कॉरिडोर फॉर ईच फ्लोर, ऐसा वर्ड होना चाहिए। इसमें भी सीरियल नंबर 2 के लिए 1 के लिए भी होना चाहिए था बट वो एज्यूम था क्योंकि ऊपर में दे दिया था
300 के लिए, ठीक है ना। ये जो वर्ड था, बिल्डिंग हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 300 स्क्वायर मीटर्स फॉर ईच फ्लोर। ये ईच फ्लोर जब बोल दिया इसने, तो इसका मतलब वॉल आएगा हर फ्लोर पे आएगा, वरांडा हर फ्लोर पे आएगा, कॉरिडोर हर फ्लोर पे आएगा, और कॉलम्स हर फ्लोर पे होंगे। इसके लिए 25 और 8.5% हर फ्लोर के लिए इंक्लूड होगा, इसलिए हर फ्लोर का एक ही काम हो रहा है 451.13। आप जो बोल रहे हैं वो भी एक स्पेशल केस बनेगा, जब कुछ अलग ड्राइंग होगा हर फ्लोर के लिए। हर फ्लोर में ऐसा हो सकता है कि मैं वरांडा ना इंक्लूड करते हुए वरांडा को रूम में ले लिया मैंने। बहुत से फ्लोर पे ऐसा होता है कि मेरे को वरांडा नहीं होना है, मैं रूम में इंक्लूड कर दिया उसको, मेरा थोड़ा सा ड्राइंग रूम और बड़ा हो जाएगा, वरांडा इंक्लूड नहीं करूंगा मैं। या फिर मैंने कुछ ऐसा पैसेज था, उसको पैसेज को ना करते हुए मैंने बेडरूम में इंक्लूड कर दिया, है ना। बालकनी थी, बालकनी ना लेते हुए मैंने बेडरूम बड़ा कर दिया उसको। तो ये बहुत मतलब एक रेयर केस है। बट एक जो ड्राइंग नीचे में बन रही है वही ड्राइंग मतलब इट हैज बीन टेकन केयर फॉर ऑल द 4 फ्लोर्स, है ना। ठीक है। ठीक है सर, समझ गए सर। हाँ ठीक है ना। आप जो बोल रहे हैं वो भी हो सकता है, मे बी पॉसिबिलिटी, है ना, वो भी होता है और हो सकता है, ठीक है। बट ये केस सिमिलर स्ट्रक्चर्स के लिए नीचे से ऊपर तक है, ठीक है। तो वी विल हैव द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम एज 2.1, ठीक है ना। तो 2.1 जो है ये इट इज टू बी रिटर्न इन द रिकॉर्ड बुक्स, ठीक है। तो आप सीरियल नंबर्स में बता दूंगा कि सीरियल नंबर कौन सा रहेगा, बट इट इज टू बी विदाउट सीरियल नंबर आप लिख दो वहाँ पे रिकॉर्ड बुक्स में ये प्रॉब्लम में। दैट इज प्रिलिमिनरी एस्टिमेट, एग्जाम्पल फॉर द प्रिलिमिनरी एस्टिमेट। मैं वो प्रैक्टिकल का नाम भी बता रहा हूँ, सीरियल नंबर 1 ही है आपके। आप देखेंगे अगर प्रैक्टिकल के अगर टाइम टेबल सिलेबस देखेंगे तो उसमें सीरियल नंबर 1 प्रिलिमिनरी एस्टिमेट यूजिंग प्लिंथ एरिया मेथड। तो सीरियल नंबर 1 ही डालो, प्रैक्टिकल नंबर 1 प्रिलिमिनरी एस्टिमेट यूजिंग प्लिंथ एरिया मेथड। उसमें ये प्रॉब्लम आपको हेडिंग लिखने के बाद ये प्रॉब्लम लिखना है, दैट इज प्रिपेयर प्रिलिमिनरी एस्टिमेट फॉर फ्रेम्ड। अगेन यहाँ पे 5 स्टोरी आ गया, ठीक है। अब 4 का 5 बन गया यहाँ पे, थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्टी आ गई है एक फ्लोर की, है ना। 5 स्टोरीड ऑफिस बिल्डिंग, 5 स्टोरीड ऑफिस बिल्डिंग, सॉरी थोड़ा सा थोड़ा सा हैंग हो रहा है। इज इट विजिबल? विजिबल है क्या? यस। यस सर। मेरे पास थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। Okay. So prepare preliminary estimate of framed 5-storied office building having a carpet area of 500 square meters for each floor. The following data is given. The first data it has been given as area of veranda, corridor, etc. to be 15% of built-up area, and for walls and columns it is 9.5% that of built-up area. ठीक है। तो अब वही चीज आ गई फिर से, 15% ऑफ कॉरिडोर रहेगा और 9.5% ऑफ बिल्टअप एरिया रहेगा इसका। बिल्टअप एरिया रेट ग्राउंड फ्लोर एक्सक्लूडिंग, वही चीज फिर से रिपीट हो गई है, बट रेट इज समवॉट डिफरेंट। पिछले इसमें 15,000 था, यहाँ पे इट इज 16,000। तो बिल्टअप एरिया रेट फॉर ग्राउंड फ्लोर एक्सक्लूडिंग फाउंडेशन इज 16,000। built-up area rate for first and second floor is 18,500. Built-up area rate for third floor is that is 20,000, and built-up area rate for fourth floor is 22,000। जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसा वैसा रेट उसका इंक्रीज हो रहा है। स्टार्ट हुआ था 16,000 से, एंड हो रहा है अप टू फोर्थ फ्लोर पे 22,000 पे, ठीक है। अब सीरियल नंबर 6 देखो, एक्स्ट्रा फॉर फाउंडेशंस इट इज 20% ऑफ सुपर स्ट्रक्चर कॉस्ट। कितना आ जाएगा? 20% ऑफ सुपर स्ट्रक्चर्स, सुपर स्ट्रक्चर का 20% आएगा। नेक्स्ट सीरियल नंबर 7 देखो, प्लिंथ एरिया रेट इज गिवन एज, अगेन ये कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर का दे रहा है, बट ग्राउंड फ्लोर का आपको सब फ्लोर के लिए लेना नहीं है, बट
it has been given. ठीक है, ये थोड़ा सा serial number 7 it is not used. 8 सीरियल नंबर में देखो गिवन डाटा में एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर स्पेशल आर्किटेक्चरल ट्रीटमेंट अगेन वही प्रोसेस में 1.5% है, वाटर सप्लाई के लिए 8% है, इलेक्ट्रिफिकेशन 10% है, कंटिजेंसीज 4% है, और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट 9.5% है, और सोर्सेज के लिए एक्स्ट्रा 5%. अब ये है बिल्डिंग कॉस्ट. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप इसका स्नैप ले लो और इसका मोबाइल में मतलब इसका वो कर लो. वैसे मैं ये प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक में दूंगा भी आपको, मतलब गूगल क्लासरूम में इसका वो भी रहेगा सॉफ्ट कॉपी में. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर. Yes, sir. Yes, sir. इसका सोल्यूशन आपको कैलकुलेट करना है. इसका सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, इसका इवन दो जी, आई sir. एम हैविंग द सोल्यूशन फॉर दिस, मेरे पास सोल्यूशन है, बट आप अपने लेवल पे इसको सॉल्व करो. अपन टैली करेंगे कि वेदर दिस सोल्यूशन इज करेक्ट और नॉट. तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर सर ये आया था, इसका डिजिट्स में जो भी आंसर आया था, अगर वो करेक्ट मेरे आंसर से मैच होता है सो उसको फिर आपको इट इज टू बी रिटन इन द रिकॉर्ड बुक्स. अभी रिकॉर्ड बुक्स में मत लिखो, पहले आप सॉल्व करो. सॉल्व करने के बाद इसका कैलकुलेट करो, हर स्टोरी का निकालो, अलग रेट्स में अमाउंट निकालो, टोटल ऐड करो, वो सारा परसेंटेजेस जो थे वो सारे करो. और उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा एस्टिमेटिंग का, फर्स्ट वी विल सी द आंसर्स फॉर दिस 2.1. अगर सही करेक्ट है तो यू शुड राइट डाउन इन द रिकॉर्ड बुक्स. ठीक है, तो हियर वी विल एंड दिस टुडेज लेक्चर्स. एनी डाउट्स रिलेटेड विद दिस? कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, एनी कंफ्यूजन? एवरीवन? Yes, so we can stop this today's lectures. We can end this today's Yes, sir. lectures. Yes. So here we will end this today's lecture. तो आज का